علامہ اقبال علیہ رحمت بہتان لگا رہے ہیں۔ پہلی بات انہاں دا یہ کہنا کہ جناب انہوں نے ایک سال وچ جرمن کس طرح آ گئی، ان دی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ کیا جرمن والے ایڈے ہی پاگل نے کہ جس بندے نو کھ نہیں آندا اور کوئی ان دا کام نہیں، ان دے نا تے وہ پوری ایک روڈ رکھ رہے نے۔ اور میں خود جا کے وزٹ کیتا ہے جتھے علامہ بیٹھ کے اپنی پوئٹری کردے رہے نے، اس جگہ نے انہاں پریزرو کیتا ہوئے، محفوظ ہائیڈلبرگ کیتا ہوئے۔ اقبال افا، ہائیڈلبرگ ہاں، اقبال افا۔ مطلب تسی وہ کہندے نا، تسی خود ہی غور کرو نا کہ ایڈنل جرمن ایڈی پاگل قوم ہے کہ وہ بندہ جڑا پاکستان چ گیا ہے اون دے واسطے انہاں نے روڈ دا نام ہی رکھ نہیں دیتا۔ نہیں نہیں، یہ وجہ ہو رہا ہے، یہ وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ اتنے رہن دی وجہ تو ایک سال میری رہے حل تو تو سن لو نا۔ نام نہیں رکھیا۔ جی جی، جی جی، ہن دسو، تسی دس دیو۔ اقبال بہرحال واپس بھی جو ہم، گئے نے، اقبال جی اقبال نے اقبال دا ایک ہاں مقام بس ہے، تو دی وجہ تو پھر نہیں، میں بنتا ہے نا جی۔ علیم صاحب میری گزارش ہے کہ کنے لوگ نے اس ٹائم عظیم بٹ صاحب سمیت کتنے جرمنی چ رہے نے کنہ دے بہر نا تے روڈ رکھی دسو اقبال مینوں۔ تو اقبال ہے نا جی، اقبال دا ہاں تو پھر اچھا موازنہ نہیں نہ کرو لگدا، اس طرح جی۔ اچھا نہیں لگدا کہ انہوں کہے جی انہوں تو خبر ہی کونی۔ اچھا دوجی بات ایک سنو، پیام مشرق علامہ اقبال نے گوئٹے دے رد چ نہیں لکھی ہے، نوٹ کر لو۔ ہوندا ہے نا کہ انہوں شیئر کر کے تنوں کاؤنٹر کیتا جائے، فکر سیم ہے۔ وہ بھی مشرق تو متاثر ہے گوئٹے، اور انہیں مغرب نو تنقید کیتی ہے اور کہہ رہا ہے کہ مغرب دا، اور پھر میں اگے ہوندا جڑا دباچا ہونا بٹ صاحب نو اے بھی نہیں گوئتھے، پتا کہ شاہ جی صرف انہوں اقبال کا دے نام میں صرف تصحیح کرا گوئتھے، تھے ٹی ایچ ہے، گوئٹے، گوئتھے چلو نہیں وہ ہوئے گا، لیکن ساڈے یہاں تے گوئٹے ہی سارے جڑا اردو میں جنہ بھی گوئتھے لٹریچر ہے گوئتھے۔ نا اوندے، ہاں وہ تہاڈی تلفظ انج ہوئے گا، لیکن اقبال نے بھی گوئٹے لکھا، ٹے نال ہی لکھا سارا، ٹھیک ہے جی۔ پیام مشرق اس نے باقاعدہ ایک نظم لکھی انہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے جی۔ اردو زبان ہے جن بھی حضرات نے وہ سارے گوئٹے ریٹن اتنے گوئٹے ہی موجود ہے۔ اچھا، تلفظ ناواں دا ساڈے نا جدوں وہ لیندے نے وہ اپنا تلفظ ہوندا ہے، جے اسی لینے اون دا ہور تلفظ ہوندا ہے۔ میں سویرے باقاعدہ دیباچہ میں تانوں آئندہ وہ پورا دیباچہ اقبال دا پیام مشرق دا پڑھ کے سنا دینا تانوں میں، 5.5 صفحات تے دیباچہ۔ کوئی پیام مشرق لے لو نیٹ تو، میں کوشش کرنا کہ مینوں PDF مل جائے، اقبال نے ان دا پورا تجزیہ کیتا ہے۔ مغربی دیوان مینوں جرمنی نہیں آندی، اندر چ انہوں نے کی، لیکن ان دی فکری مباحث نے اقبال نے ایک تک کیا ہے کہ اس نے جرمن جڑا وہ شاعر ہے گوئٹے، انہیں اپنا فارسی زبان دے ردیف قافیے اور عنوانات اقبال نے انہاں ڈسکس کیتے ہیں، اور وہ مغرب تو متاثر نہیں، اور مشرق تو متاثر ہے۔ اور اس سے جڑا تفہیم ہے، جڑا وہ موضوع ہے، مضمون ہے، اقبال نے پوری پیام مشرق، میں تانوں باقاعدہ پیام مشرق دی جیڑی اوتھے ہے پوئٹری، وہ میں تانوں فارسی پڑھ کے انہاں ترجمہ سمجھا کر دیاں گا، تے پھر تسی موازنہ کرنا کہ انہاں دونوں دی فکر دی مماثلت کتنی ہے۔ یہ انج کرن عظیم بٹ صاحب جڑا انہاں دے جرمن زبان ہے نا، وہ آئندہ کرن جرمن زبان جڑا نے تے پڑھن، سانوں دسن کہ انہوں نے کی لکھا ہے گوئٹے نے، تے پھر میں انہوں نے دساں گا اقبال نے کی لکھا ہے۔ جی شاہ صاحب شکریہ بہت بہت۔ دیکھیں میرا مقصد یا جو میں نے دعویٰ کیا یہ نہیں کیا کہ اقبال جو ہے وہ بہت بڑا شاعر نہیں تھا۔ شاعر ہونا اور بات ہے، اگر میں حملہ کرنا چاہتا ان پہ تو میں بہت ساری چیزوں جو یہاں پہ مطلب ثابت شدہ چیزیں لکھتے ہیں وہ بیان کرتا، ٹھیک ہے، ان کے کردار کے بارے میں کچھ کہتا، لیکن میں نے اس بارے میں بات کی جو کہ میری خود تحقیق تھی، اور مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں پیام مشرق بھی پڑھوں، جب میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے جواب میں کہا جائے، کیونکہ اور دوسری بات آپ نے کہا ایک سال میں جرمن کیسے سیکھ لی، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک سال میں جرمن کیسے سیکھ لی، میں نے یہ کہا ہے کہ ایک سال میں اتنی بہتر جرمن آ جانا کہ انسان گوٹے کا جو مغربی مشرقی دیوان ہے اس کو سمجھ لے، کیا رہ سکتا ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ بھی آپ یہاں پہ کسی ایم اے کی ہوئے کے پاس وہ دیوان لے جائیں، اس کو کہیں پڑھ کے مجھے سمجھا دے کوئی سمجھ آ گئی تو نہیں، وہ کہے گا نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں کیونکہ مجھے تو عرصہ دراز ہو گیا ان باتوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گوئٹے نے مشرق کی طرف شکوہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس شکوے میں اگر اقبال نے پڑھا ہوتا کم از کم اس کا جواب دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک ہو گیا کہ مجھے نہ اس کا جواب ملا، نہ کسی اس کی غزل کے شاعر کا جو اس نے شعر کہے ہیں ان کا کوئی حوالہ ملا، نہ دباچے میں ہی کوئی شعر، تبصرے ملتے تھے اس وقت انگلش
जुबान में गोइठे के बारे में, वही उन्होंने लेके तो अपना वो बनाया है। उन्होंने दीवान को ना पढ़ा है ना समझा है, ठीक है, जो मेरी तहकीक है। अब आप कहते हैं कि जर्मन जुबान में, अच्छा अब ये पहले ही बताएं, आप उसका दिफा करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार तो फिर ठीक है, मैं किसी दिन मजलिस लगा लूंगा, मैं दीवान पढ़ नहीं। के। हाँ जी। अभी अब बात मुकम्मल हो जाए तो मैं अभी अर्ज कर, ये इतना बड़ा कोई गोरख धंधा नहीं है। आप हवाई फायर कर रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं। ना तो आपने गोइटे को पढ़ा है और ना इकबाल को पढ़ा है। ये मैं आपसे अभी अर्ज कर देता हूँ। इसलिए कि फिक्र मुझे बताएं, गोइटे की फिक्र क्या है ये मुझे बताएं। क्रिटिसाइज उन्होंने किया, इकबाल ने भी किया, मशरिक को इकबाल ने भी, इसी पयाम मशरिक में इकबाल ने भी किया है। मैं आपको अच्छा दिखाऊंगा एविडेंस। इकबाल कहते हैं कि फिक्र तुम्हें कुरान से लेनी चाहिए थी और तुम्हारे असलाफ का ये है, और उसमें तो आप कैसे कहते हैं कि पयाम मशरिक में उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया मशरिक वालों को? जो मशरिक वालों की खूबियां उनको भी डिस्कस किया है, जो खामियां उनको भी डिस्कस किया है। जी। तो देखिए मेरे मैं मोहतरम ऐसे हवाई फायर ना करें। आप ऐसा करें ना, मुझे कोई जुमला बताएं, बताएं कोई जुमला भी, अभी बताएं चले। मैं अभी चले ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताएं कोई जुमला। मैं अभी बता देता हूं, आप मुझे गलत समझिए, मैंने कहा है कि गोइठे ने शिकवा किया है, उसका जवाब आना चाहिए था। अब मैं उसका ओहो, इकबाल ने भी शिकवा किया। आप देख रहे ओहो ममासलत देखे, जैसे गोइटे ने शिकवा किया वैसे इकबाल ने भी शिकवा किया। इसका मतलब आपने इकबाल को पढ़ा ही नहीं है। ने ओहो मेरी उसने मगरबी मेरा मशरकी। गुजारिश है कि हजरत है गपशप ना लगाया करें। अच्छा इकबाल ने भी मशरिक मगरिब वालों से भी शिकवा किया और मशरिक वालों से भी शिकवा अच्छा, किया। चले मुझे ये बताएं, आप दिफा करने के लिए तैयार हैं? ये बताएं ओहो, मैं क्या, चले। मेरे पास इतना टाइम नहीं दिफा क्या करना। आप तो ऐसे मतलब गोम गमैयों में कराते अच्छा करने के तैयार है। अभी ऐसा करें, चले वो आ रहा है हाँ जी, जैसे वो मैं चीमा आपको, साहब है, वो चीमा हाँ साहब परसों थे, वमन युतिल्लाह वर रसूल, मुझे नई आयत का मफहूम है। वो पूरा घंटा ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ हुसैनी साहब ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ अच्छा ਬਸ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਗੱਡੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ हाँ ਤੁਹਾਡੇ जी हाँ जी, ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੋ। मैं हुणे दसना। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਬਾਚਾ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਫੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਬਾਚੇ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਸਫੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। नहीं, चार कितने पांच सफे ने सफे दिबाचे हाँ, दे? 4-5 सफे ने, ठीक है। तो पहले आप इकबाल एक सफा कह रहे, पहले आप एक सफा कह रहे यार, थे। अब देखिए, अब बात तो करने देना, मैं उस बात को करे क्लियर करे, कर देता हूँ, अच्छा ठीक है। करे करे बात, हाँ करे जी बात। हाँ जी हाँ जी, बात यह है कि उस सफ़े पे, दिबाचे पे, जो वो लिखता है कि मगरबी दीवान, और फिर आगे उसने फिर पहली कुछ चंद अशार में इल्लामा इकबाल साहब ने फिर उसको मगरबी दीवान कहा है। उसका नाम है मगरबी मशरकी दीवान। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जब इंसान एक तहरीर को छापता है तो उसी बहुत दफा चेक करता है कि इसमें गलतियां क्या क्या हैं, और पहले 2 सफ़े में ही गलती है, दीवान का नाम ही सही नहीं लिखा उन्होंने। मैंने स्क्रीनशॉट अलीम साहब को भेजे हैं, वो आपको भेज देंगे, या मैं आपको भेज दूंगा, ठीक मुझे भेज दे, चले है। हाँ इसी जी पे फैसला, मुझे भेज दे, ठीक हाँ है। जी हाँ जी, एक तो ये जर्मन बात। में इसको, जर्मन में उसका क्या नाम है बताएं मुझे। वेस्ट ओस्लिशिया दीवान, वेस्ट वेस्ट, मगरबी, हाँ जी, हाँ ओस्लिशिया मशरकी दीवान, जो हमारे अच्छा समझा जाता है, ठीक है जी। ठीक है। आपके पास वो जर्मन जुबान में है सारा, उसका तर्जुमा किस जुबान में हुआ है? उसका तर्जमा इंग्लिश में अब मिल जाता है। पहले जब मैं तो जो बात कर रहा हूँ अपनी तहकीक की, तो 20 साल 25 साल पुरानी तहकीक है, अब मिल जाता है इंग्लिश में, शायद उस वक्त भी मिल जाता था। बस मैंने कोशिश की कि उर्दू में मुझे कोई तर्जमा मिले। उस वक्त तो डिक्शनरी भी मौजूद नहीं थी जर्मन उर्दू की, जबकि मैं बात कर रहा हूँ कोई इंग्लिश में बात। तर्जुमा है ना, इंग्लिश में तर्जुमा है ना। हाँ जी, मेरी वो बात, आप मुझे अलीम साहब, मैं उस वक्त बात कर हाफिज रहा नजीर हूँ साहब तो को भेज देंगे, मुझे भेज देंगे, कोई मसला नहीं। हाँ जी इसी हाँ पर जी देखें। अच्छा आगे चले जी, ये हुआ। हाँ और जी। अगली दूसरी अब बात। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले चंद सफात में 2 दफा उस दीवान का नाम ही ठीक नहीं है, ठीक कोई है। ये इतना बड़ा हाँ जी। मसला नहीं है। नहीं बाज नहीं, औकात मसला आप है ना। देखें, ये आप ऐसा जब कोई मसला देखें। उन्होंने उसका कंटेंट देखें, उस पर भी मैं बात कर लूं। उन्होंने कंटेंट वहां पे बयान किया, पूरा कंटेंट नहीं किया, आगे उन्वानात नहीं लिखे उन्होंने। देखें, आप अगर साकी वो, नामा, हाँ जी मुगन्नी नामा, हाँ जी मैंने उसका दीवान नहीं देखा। मैंने पयामे मशरिक को देखा है। जो दीवान है गोइटे का वो देख लेते हैं हम, ठीक है ना जी, वो भी हाँ आपकी जी तसल्ली कराते मैं हैं। हाँ और जी मैं इकबाल की फिक्र में और गोइटे की फिक्र में जो मुमासलत है वो भी आपको पेश कर देते हैं, ठीक है हाँ जनाब। जी हाँ जी वो भी शाह पेश कर साहब देते अब, हैं। मैं अभी हाँ वो भी पेश कर देते हैं, बेफिक्र हो जाए। हाँ जी, शाह साहब जो मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बकायदा वहां पे दीवान का नाम लिखा है और ब्रैकेट्स डाली हैं, बिल्कुल ठीक है, जो हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। तो उर्दू वहां पे उन्होंने लिखा उन्होंने मगर, उर्दू, जी बोले बोले आप, सॉरी हाँ बोले। जी, वहां पे दीवान का नाम लिखा है और लिखा है मगरबी दीवान, जबकि उसका नाम है मगरबी मशरकी दीवान। और 2 दफा मैं, अभी तो मैं ठीक है। पूरा उसका पढ़ूंगा, फारसी तर्जमा, उर्दू तर्जमा, तो शायद और बहुत सारी चीजें मिल जाए। अब आपने कहा जी मैं बिल्कुल। जर्मन में कुछ आपको सुनाऊं, तो वो सुन ले। वो क्या शिकवा करता है, वो कहता है कि नोए दरविश
wissen es nicht besser. Wie schwatzen das Alter das Neue dazu? Die Verwirrung wird täglich größer, ओ heilige कुरान, ओ एविगे रूह. वो कहता है कि जो नए दरवेश हैं, जो उलमा हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, वो नई सोचों और पुरानी सोचों को मिक्स करते जा रहे हैं. Die Verwirrung wird täglich größer. वो कहता है हर दिन जो है वो गुमराही जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कोई समझ नहीं आ रही उलमा को भी. ठीक है. ये कहता है ओ हाइदिगे कुरान, ओ एविगे रूह. कहता है वो कुरान को मुखातब करके कहता है कि कुरान ही मुझे कोई हाल बताए, क्योंकि जो उलमा है उनको तो पता ही नहीं चल रहा कि कैसे दीन को समझना है और आगे समझाना है. वो नए नजरियात और पुराने नजरियात को, सोचों को मिस कर रहे हैं. ये उसका शिकवा है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कुरान को कोई समझे, कोई दीन को समझे, किस तरह समझे. ओ हाइदिगे कुरान, ए कुरान, ओ एविगे रूह, ए सलामती वाली रूह. अब मैंने आपको यानी कि ये मैंने कोई किताब से पढ़ के जो मेरे पुराने जमाने की याद है, कोई 20 साल पहले कोई शायद जी जी उसमें से अब आपको जी अब जी हो गया. अब यही अगर मफहूम अल्लामा इकबाल ने यही बयान किया हो तो फिर ना बसूफी ना बमुल्ला नशीनम तू दानम मन इनम ना, इस तरह के अगर मजामीन इकबाल की पोइट्री में भी आपको मिल जाए तो फिर क्या होगा. देखिए और मैं बाद इकबाल भी की शिकवा पूरी मेरी बात अर्ज कर. अच्छा गुजारिश है मेरे मोहतरम, गुजारिश ये है कि इस पर मजामीन, अभी आप जो कह रहे हैं इकबाल अकेडमी को, इस पर मजामीन भी लिखे गए. मैं वो मजामीन भी इंशाल्लाह ताला चल के जो इस पे जो ममासलत के हैं सारे मजामीन है वो भी मैं आप एक अर्ज कर दूंगा. दूसरी बात, अब आप मुझे ये बताएं, अगर आप माशाल्लाह आपने, मुझे जर्मनी नहीं आती, हाफिज शिराजी से जो कुछ, ये तो है ना कि उलमा का शिकवा किया. अब गोइट्री ने जो हाफिज शिराजी से जो कुछ लिया वो मुझे पढ़ के सुनाए. मैं अपनी पोइट्री हाँ, में हाँ जी हाफिज शिराजी, मेरी बात सुने, मेरा सवाल का जवाब दे. हाफिज शिराजी, फिरदौसी, शेख सादी, उनकी फिक्र से जो मुतासिर होके गोइटे ने लिखा है अपने इस दीवान में, वो मुझे बताएं वो क्या है. बिल्कुल. उसने अपनी गज़लों को ये वाले उन्वान दिए हैं और गज़लें भी लिखी हैं. ठीक है, उसने दरअसल हाफिज शिराजी शमसुद्दीन, ठीक है, उसने शमसुद्दीन का नाम भी एक गज़ल में लिखा है. हाफिज शिराजी से नाम को मुतासिर, छोड़े कंटेंट बताएं, कंटेंट क्या लिखा है. देखिए मेरी बात तो करने देना. जी हाफिज करें करें. शिराजी से मुतासर होके उसने ये दीवान लिखा. ठीक है, और फिर उसने, क्योंकि उसमें बहुत सारी कुरान की चीजें आई हैं, उसने कुरान पढ़ा, उसने कुरान पे तहकीक की. गोथे ने पूरी तहकीक करने के बाद उसने ये दीवान लिखा. तो अब अगर वो लिखता है कुरान के बारे में, दुआएं लिखता है, तो मैं ये नहीं कह सकते उसने सती तारफ कुरान का लेके तो कुरान के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं कि तहरीर लिखी, बल्कि उसने कुरान को पढ़ा जितना भी उस वक्त मियार जो मुआद मुयस्सर था, जर्मन ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में, फ्रेंच ज़बान में बल्कि. तो फिर अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि मैं वो आपको शिराजी साहब का, मैं कह रहा हूँ कि वो मैं आपको जो इस गज़ल में उसका नाम है वो आपको बता दूंगा. मेरे ज़हन में 20 साल पहले पुरानी तहकीक है, 25 साल, हर चीज़ मौजूद नहीं है, कुछ कुछ चंद चंद अशार मौजूद हैं मेरे मशहूर. अभी जो ठीक है, तो 20 साल अब पुरानी, मैं देखें एक 20 और बात अब बता फिर दूं, आप एक और बात, मेरे एक और बता दूं. 20-25 एक और साल जो बात. पुरानी, देखें हाँ, भट्ट साहब गुजारिश सुने मेरी. आपने ऐसे ही वो प्याली में, चाय की प्याली में जो है वो तूफान खड़ा, आपकी 25 साल पुरानी तहकीक, ताजा आपने तहकीक की नहीं, चैलेंज आप दे रहे हैं सबको. तो देखें गुजारिश ये है कि हाफिज शिराजी से, ये तो आपने मान लिया और सुनने वाले भी नोट कर लें, हाफिज शिराजी से मुतासिर है वो जर्मन शायर गोइटे, और उसकी शायरी में जिस बंदे से मुतासिर हो रहा है उसकी फिक्र को हत्ता के उनवानात भी ले आए हैं, साकी नामा, मुगन्नी नामा, और इसके अलावा उसने बकायदा रदीफ और काफिया भी वहां से लिए हैं. अब हाफिज शिराजी कौन है? वो एक मुसलमान शायर भी है, मुसलमान थिंकर भी है. अब उस फिक्र को क्या उसने अपने यहाँ नहीं लिया होगा? अब ये आपका शिकवा भी है, जैसे अल्लामा इकबाल है, वो मौला रूम को अपना जो है मुरीद कहता है. वो मौला रूम अलैहिर्रहमा को पीर रूमी कहते हैं, अल्लामा इकबाल रोशन जमीर कहते हैं, और अपने आप को मुरीद हिंदी कहते हैं. जहां अल्लामा इकबाल दीगर उलमाए कराम का शिकवा करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा जो रोशन जमीर पीर है वो मेरा मौला रूम है, और मैंने मौला रूम को पढ़ा तो उसने वो बांसी बनाई कि मुर्दा दिलों को जिंदा किया. तो मेरे मोहतरम आप बैलेंस रखा करें, जब किसी की बात करते हैं तो इत्दाल और अदल का जो तराजू है वो थाम के याद किया करें. ये नहीं है कि कोई एक जुमला लेकर और उसको फिर रट लगा लेना, ये दुरुस्त बात नहीं है. बोलिए अब मैं सुनता हूँ. हाँ जी, देखें उसने एक नज़म, मैंने कहा ना पहले, मैंने दीवान का बता दिया आपको, दीवान का नाम ही ठीक नहीं उसमें लिखा हुआ. ठीक है ना, दिबाचे में ना बात में, अभी तो मैंने अभी तहकीक करनी है.
मैं जो तहकीक जो मैंने नज़में याद की हुई थी वो 20-25 साल पहले याद की तहकीक थी, जो मैंने प्याम मशरक में तहकीक की बाद में, क्योंकि ये सवाल मेरे ज़हन में था कि प्याम मशरक का कुछ ना कोई ताल्लुक होगा ना। मुझे 4-5 साल पहले ऐसे ही ज़ौक़ पैदा हुआ, तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि यार यूट्यूब पे इकबाल के बारे में, प्याम मशरक के बारे में कोई लेक्चर्स मिल जाएं, ठीक है। मुझे नहीं मिला, बड़ा मैं फिर खुद तर्जमा ढूंढा पड़ा। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूँ कि देखें जो गोएथे ने लिखा, उसने उसका अपने दीवान का पूरा तबसरा, उसको कहते हैं नोटन und Abhandlung। नोटन कहते हैं नोट्स, Abhandlung कहते हैं तबसरा, ठीक है। और उसने एक 23 साल की उम्र में एक गजल लिखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और वो उस दीवान में मौजूद है। उसमें तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें मौजूद हैं, खूबसूरत मौजूद है, जो प्याम मशरक में मिलती नहीं मुझे। तो इसलिए जो मैं मेरा अपना एक तासर था वो मुझे, आपने प्यामे, इसका मतलब है आपने प्यामे मशरिक पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। मैं तर्जमा पढ़, देखे मैंने तब नहीं, तर्जमा को आपने मैं, प्यामे मशरिक आपने प्यामे मशरिक नहीं अच्छा पढ़ी। चले आप ठीक। किस गुफ्तगू से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने बड़ी शान लिखी, इसका मतलब है कि आपने इकबाल को पढ़ा ही नहीं मेरे मुताबिक। ऐसा करें, मैं यही गुफ्तगू, आप ऐसा करें, तहकीक करें, जब आपकी तहकीक मुकम्मल हो जाए तो फिर इस पर बात करेंगे। आपने पढ़े बगैर जो बंदा गुफ्तगू हाँ करेगा उससे अभी फायदा नहीं आपसे बात करने का। आपके 20-25 साल पुराना आपने पढ़ा हुआ है, आप ताज़ा पढ़ें। जब पढ़े हो जाए तो ये हमारे मोहतरम जो हैं यहाँ पे तशरीफ फरमा है, अपना क्या नाम है इनका, होस्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे के साथ जो है ना वो राजा साहब से रब्ता कर लीजिएगा, तो इस पर इंशाल्लाह आपको करूँगा, ठीक है। बहुत शाह- शुक्रिया, तहकीक जी कर शाह लें आप। साहब, एक मिनट। मैंने कहा कि उस दीवान की सबसे जो बेहतरीन गजल है वो मोहम्मद है, उसका टाइटल ही मोहम्मद है ना। दिबाचे में आपको मोहम्मद उस गजल की तरफ इशारा मिलेगा। मजामीन के लिहाज से ज़ाहिर एक मिलते जुलते मजामीन है, सती मालूमात उस वक्त भी थी, लेकिन ना आपको उनकी जो फारसी कलाम दीवान प्याम मशरक में उस नज़म का कोई इशारा मिलेगा कि इस नाम की नज़म भी है कि नहीं है। अगर है, मुझे नहीं मिला, आप दे दें, मैं माजत कर लूंगा, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, ठीक है जी। आप पहले तहकीक कर लें फिर बात बाट करेंगे, तहकीक साहब अभी आप मेरे ख्याल हवा में में शाह बातें जी कर रहे थक हैं, ठीक चुके है। हैं। हाँ जी, ठीक है, साहब ठीक है, शाह जी ठीक थक गए हैं। बाट साहब शाह जी थक गए हैं अब मेरे ख्याल में आमिर नजीर साहब से बात कर लें। आमिर अक्स साहब आए हैं, शाह साहब थक गए हैं। आप खुद जी जी ਸਾਹਿਬ ਦਾ आप लोगों की गुफ्तगू और WhatsApp नजर नहीं आने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। व्हाट्सएप निकल गए हैं। लो, ठीक हो गया, चले। बस ये बात करने लगा था, 300 आ गए हैं कि नहीं आए, क्योंकि उस दिन तो 2000 भेजने जा रही थी, नंबर 1 तो 300 वाला मसला पहले हल कर दे, 2000 तो दूर की बात है। दूसरा व्हाट्सएप चले गए हैं, जब मेरा इनका आमना सामना होगा तो फिर इनसे प्यार मोहब्बत करूंगा। बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा पढ़ता हूँ जी।